ہوٹ قطرے سے بھی جلتے ہو تو دریا کیا کرے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ذرے ذرے میں ہے اس کے حسن کا پرتو مگر. میں سمجھتا ہوں کہ شری نگر میں اس شعر کو بہت پسند کیا جانا چاہیے. تشنا کامی ہی مقدر ہو تو پیاسا کیا کرے, ہونٹ قطرے سے بھی جلتے ہو تو دریا کیا کرے. ذرے ذرے میں ہے اس کے حسن کا پرتو مگر, جب شعور دید ہی ناقص ہو جلوہ کیا کرے. جی میں پیش کرتا ہوں کہ ذرے ذرے میں ہے اس کے حسن کا پرتو مگر, جب شعور دید ہی ناقص ہو جلوہ کیا کرے. عزم ہی محکم نہ ہو تو منزلوں کا کیا قصور. عزم ہی محکم نہ ہو تو منزلوں کا کیا قصور. کیس ہی مایوس ہو جائے تو لیلا کیا کرے. عزم ہی محکم نہ ہو تو منزلوں کا کیا قصور. کیس ہی مایوس ہو جائے تو لیلا. چند شعر اور آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کیا جانے کون زلزلہ کر دے انہیں تباہ. کیا جانے کون زلزلہ کر دے انہیں تباہ. اونچی عمارتوں کو نہ اترا کے دیکھیے, اونچی عمارتوں کو نہ اترا کے دیکھیے. اوقات جاننی ہو اگر اپنی آپ کو, افواہ اپنی موت کی پھیلا کے دیکھیے. عرض کرتا ہوں کہ اپنے ماضی سے نہ شرمندہ رہو. اپنے ماضی سے نہ شرمندہ. میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ صرف لفظوں کی سجاوٹ نہیں کرتا ساحل, اس کے ہر شعر میں پیغام چھپا ہوتا ہے. تو عرض کرتا ہوں کہ اپنے ماضی سے نہ شرمندہ رہو, روز سورج بن کے تابندہ رہو. کیا کہنا. موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے, دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو. کیا کہنا ہے, بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. میں اس شعر پر جتنی داد آنی چاہیے تھی نہیں آئی. آپ کو ایک بار پھر تالیاں بجا کر کے میری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. اپنے ماضی سے نہ شرمندہ رہو, روز سورج بن کے تابندہ رہو. موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے, دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو. عرض کرتا ہوں کہ شجر کے قد نہ میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں. شجر کے قد نہ میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں. کسی پربت نہ میں پربت کی اونچائی سے ڈرتا ہوں. سمندر ناپنا بھی چٹکیوں کا کام ہے, لیکن تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہوں. شجر کے قد نہ میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں. کسی پربت نہ میں پربت کی اونچائی سے ڈرتا ہوں. سمندر ناپنا بھی چٹکیوں کا کام ہے, لیکن تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہوں. بیچ میں جو چار مصرے میرے ذہن میں آئے میں چاہتا ہوں پہلے وہ پیش کروں. کیا ستاروں تمہیں کلیوں کے تبسم کی قسم, اوس کی بوند پہ سورج کی گواہی لینا. اوس کی بوند پہ سورج کی گواہی لینا. کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک, چاند نکلے تو ذرا اس کی تلاشی لینا. واہ واہ واہ. کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک, چاند نکلے تو ذرا اس کی تلاشی لینا. کسی سے کوئی تعلق نہ دوستی نہ لگاؤ, فضول اپنی جوانی گوا رہا تھا میں. تیری نگاہ نے ایک کام دے دیا ورنہ بہت دنوں سے کبوتر اڑا رہا تھا. تیری نگاہ نے ایک کام دے دیا ورنہ بہت دنوں سے کبوتر اڑا رہا تھا میں. آئیے پھر لوٹ کے چلتے ہیں کہ شجر کے قد میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں. کسی پربت میں پربت کی اونچائی سے ڈرتا ہوں. سمندر ناپنا بھی چٹکیوں کا کام ہے, لیکن تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے ایک شاعر کا احساس. اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا کہ میری بستی کی بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی ہے. کیا کہنا. میری بستی کی بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی ہے, نہ جانے کیوں میں سپنوں میں بھی شہنائی سے ڈرتا ہوں.
जी मैं पेश करता हूं कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता बहुत हूं। अच्छा अभी साहिल साहब। इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। आहा, मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं मरने से नहीं डरता हूं, रुसवाई से डरता हूं। के चलते 4 मिसरों का एक तोहफा उस आपकी जहमत तमाम कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। क्या कहना। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वाह 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 वाह। अलीगढ़ के शायर मरहूम शायर मंजूर हाशमी ने कहा था कि मसला कुछ भी नहीं है मेरा हमदर्द, मगर और भी कुछ उसे दुश्वार बना देता है। एक एक ईंट गिराता हूं मैं दिन को, लेकिन रात में फिर कोई दीवार बना देता है। ये कश्मकश हर हसास जहन की अमानत है। इस कश्मकश को कश्मीर से तुलू होने वाली शायरा, जो एक शायरा भी है, अदीबा भी है, सहीफा निगार भी है, सैयदा नसरीन नक्काश, इस कश्मकश को हमने उनसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी उनके कलाम में सुना है। गुजारिश करता हूं कि आज अपने शहर में भी वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। मोहतरमा सैयदा नसरीन नक्काश। गजल से पहले चंद शेर समात फरमाइएगा। ए मंजिले हस्ती, ए मंजिले हस्ती तुझे मैं पा न सकूंगी। ए मंजिले हस्ती तुझे मैं पा न सकूंगी। रस्ते मेरी उम्मीद के पुरखार बहुत है। दिल टूट भी जाएगा तो गालिब की तरह हम ले आएंगे बाजार से, बाजार बहुत हैं। गैरों से मोहब्बत तो बहाना है कि हम लोग, गैरों से मोहब्बत, गैरों से मोहब्बत तो बहाना है कि हम लोग खुद अपनी परिस्थिति में गिरफ्तार बहुत है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुद अपनी अब गजल का मतलब पेश है। अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, वाह, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद शोलाजारों में जले हम बारिशों के बावजूद। वाह, एक मुअम्मा है अभी तक कुर्बतों के बावजूद, एक मुअम्मा है अभी तक कुर्बतों के बावजूद। हम पे खुलता ही नहीं वो चाहतों के बावजूद। वाह, ये शेर खास तौर से पेश करी हूँ, मुलाजा फरमाइए। गुनगुनाता है समंदर, गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर। गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर। डूब जाते हैं सफीने साहिलों के बावजूद। गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर। डूब जाते हैं सफीने साहिलों के बावजूद। हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर, हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर। शहर में मौजूद कितने मक्तलों के बावजूद। वसीम साहब, हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर। वाह, शहर में मौजूद कितने मक्तलों के बावजूद। मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ, वाह, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ। शहर वीराना लगे हैं रौनकों के बावजूद। वाह, ऐसा लगता है कि दिल, ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है शायद दिल नहीं। वाह, ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है शायद दिल नहीं। वरना क्यों कायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। वाह, ये शेर खास तौर से। खाक के पुतले फलक के चांद तारे हो गए, खाक के पुतले फलक के चांद तारे हो गए।
हम वही हैं कल जहाँ थे काविशों के बावजूद, हम वही हैं कल जहाँ थे काविशों के बावजूद, यूं ताक़ुब में हैं मेरे घर की वीरानी के अब, यूं ताक़ुब में हैं मेरे घर की वीरानी के अब, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए। उसने फिर दी है नसरीन मुझे जीने की दुआ, पी लिया फिर जहर मैंने तलखियों के बावजूद, पी लिया फिर जहर मैंने तलखियों के बावजूद। वाह वाह वाह। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उर्दू एक ऐसा जादू है कि जिसने रघुपति साहब को फिराक कर दिया, जगन्नाथ को आजाद कर दिया, कृष्ण बिहारी को नूर कर दिया, दुर्गा प्रसाद साहब को सुरूर कर दिया। उर्दू से इश्क करके रतननाथ सरशार हो गए, किरपाल सिंह बेदार हो गए। इसी जबान ने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर कर दिया और हमारे दोस्त जनाबे चरण सिंह को बशर कर दिया। चरण सिंह बशर उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पुलिस अफसर, लेकिन शायरी में सच्चाइयों के तर्जुमान और एक ऐसे शायर कि जिनका लहजा, जिनके तेवर तमाम दुनिया में पसंद किए जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब चरण सिंह बशर से कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें और ये मुबारकबाद भी कबूल करें कि इतने शायरों की भीड़ में आप अकेले सरदार हैं। समाप्त करें कि इस वक्त दुनिया में जो भी खलफशार है उसको जहन में रखते हुए 4 मिसरे मेरे समाप्त करें कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है,
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक शेर मुकद्दस किताबों के हवाले से मुतफरक शेर है, मैं हाजिर करता हूं। ये जिंदगी के मसाइल, ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं। ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं, हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। वाह 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 वाह। ये जिंदगी के मसाइल, अच्छा शेर जाया नहीं होना चाहिए, नहीं होगा अभी। ये जिंदगी के, बहुत शुक्रिया। ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं, हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। मैं इस वक्त अहले कश्मीर की जानिब से तमाम दुनिया में जिन ममालिक में ये इस वक्त टीवी पर लोग मुशायरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक चार मिसरे उन तक पहुंचाता हूं। मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। मेरी नजरें और दिल दोनों का है ये मशवरा, इश्क करने के लिए कश्मीर आना चाहिए। मेरी नजरें और दिल, मेरी नजरें और दिल मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। वाह वाह वाह। मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। क्या कहना। मेरी नजरें और दिल दोनों का है ये मशवरा, इश्क करने के लिए कश्मीर आना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला दिया। यहां से मैं एक मतला दो तीन शेर हाजिर करता हूं। ये बात तय है, ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। और निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर। क्या कहना। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। क्या कहना। वाह 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 वाह। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वाह वाह वाह। वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। समाप्त करेंगे शेर के, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था। मुझे यकीन है फिर दांव देने वाला है। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था। क्या कहना। मुझे यकीन है फिर दांव देने वाला है। और उसी बशर को जमाना फकीर कहता है। क्या कहना है। उसी बशर को जमाना फकीर कहता है, जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, पड़ोसी मुल्क के शायर का शेर है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। ये शेर वहां के लिए
सच्चा हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत शायरों को, कलमकारों को, सोचने समझने वालों को इतना हौसला देती हैं कि कभी वो चरण सिंह बशर बनकर झूठ के चेहरे से नकाब उठाता है और कभी वो मंजर भोपाली बनकर उर्दू की तमाम बस्तियों में मोहब्बत का, एकता का पैगाम देता है और इंसानियत के तहफ्फुज़ के लिए वो अपने नगमे लुटाता है। जनाब मंजर भोपाली हमारे मुशायरों के इंतहाई महबूब व मोहतरम शायर हमारे साथ हैं। गुजारिश करता हूं उनको तशरीफ लाएं। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। और शेर देखिए हजरात, इश्क के हवाले से बहुत से शेर आप हजरात ने सुने होंगे। मेरा ये शेर आपकी नजर है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। मोहतरम राही साहब तशरीफ फरमाए, उनकी नजर करता हूँ शेर। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हज़रात, एक मतला और एक शेर। दुनिया ने बहुत तरक्की करी, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, चांद पे पहुंची, खलाओं पे पहुंची, मगर मेरा मानना यह है कि हम जहां 1400 साल पहले पहुंचे थे, ये दुनिया क़यामत तक वहां नहीं पहुंच सकती। क्या कहना है? मेरा ये शेर अगर आप तक पहुंचे तो दुआओं से नवाजिएगा हज़रात। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर। हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुंचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुंचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुंचे। एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद 2-3 शेर और पेश करूंगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं, जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं। इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं। यहाँ वजीर मोहतरम तशरीफ फरमा है मीर साहब, मैं उनकी तरफ से ये पूरे हिंदुस्तान को नजर करता हूँ। कश्मीर ने सिर्फ मोहब्बतें दी हैं और बड़ी मुसीबतें भी उठाई हैं कश्मीर ने, ये नजर है आपकी तरफ से सारे हिंदुस्तान के लोगों की, मुलाज़ा फरमाइएगा। जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं। इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी,
इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, हो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता मैं, हो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता मैं। इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, हो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता मैं। एक मतला और एक शेर हजरात और समाप्त फरमाइए, मुलाजा फरमाइएगा। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। आजाद आखिर में 2-3 शेर और फिर उसके बाद एक छोटा सा मैं गीत आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मोहब्बतों के उजालों की जिंदगी कम है, मोहब्बतों के उजालों की जिंदगी कम है। दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। दिलों में प्यार है लेकिन बटा है खानों में, दिलों में प्यार है लेकिन बटा है खानों में। जो शाख फूलों भरी है वही हरी कम है, जो शाख फूलों भरी है वही हरी कम है। वो शेर देखिए हज़रात, न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया। हजारों साल जियो फिर भी जिंदगी कम है, हजारों साल जियो फिर भी जिंदगी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया। हजारों साल जियो फिर भी जिंदगी कम है, हजारों साल जियो फिर भी जिंदगी कम है। आखिर में एक गीत कश्मीर के सिलसिले में हजरात में पेश करना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि जितनी खूबसूरत वादियां हैं उससे ज्यादा हसीन आपके दिल हैं। यही वजह है कि खूबसूरत चीजों की हिफाजत खूबसूरत लोगों के हवाले करता है खुदा। और मैं कश्मीर मेरी नजर में क्या है उसका हक तो अदा नहीं कर पाया। कोशिश की है कि बहुत आम बोलचाल में ये गीत आप तक पहुंचा दूं। समाप्त में मेरे कश्मीर मेरी जान कि तू है भारत माँ की शान, कि तुझसा कोई नहीं, कि तुझसा कोई नहीं। मेरे कश्मीर मेरी जान कि तू है भारत माँ की शान, कि तुझसा कोई नहीं, कि तुझसा कोई नहीं, कि तुझसा कोई नहीं। बंद देखिए हज़रात, पहन कर चांद तेरा एहराम
سلامی دیتا صبح و شام، زمین کی جنت تیرا نام، فضا میں تیری دل آرام، پہن کر چاند تیرا احرام، سلامی دے